welcome to all those tuning in to People's Editor on India Ahead. I'm Smita Sharma, your host for the show that keeps people, you and your issues ahead with no polarizing debates or a circus in the name of journalism. And tonight, we bring you the show live from the lawns of the Foreign Correspondents Club South Asia here in Delhi. And the issue that we are going to focus on is one that is finding huge resonance across social media, the trending topic of Modi Rozgar Do, Modi Job Do. देशवा में बढ़ल बेरोजगारी ये दादा बुझेला नाही लाचारी एसएससी की वैकेंसी हर साल घटती जा रही है, क्यों घट रही है? उसकी क्या वजह है? ये ओवरऑल एक सिस्टम की प्रॉब्लम है। साफ साफ पता चलता है कि सरकार की मंशा नहीं है इसको ठीक करने की। Citizens, netizens, activists, students, job aspirants, they've been creating a storm, especially on social media platforms, on Twitter, and they've been trending this hashtag for the past many days now, but today is the day when it climaxed, where they've been asking the Prime Minister to intervene in what they say is a situation of crisis. It's a loud cry out asking for jobs, asking the government to look into the huge anomalies that are plaguing the government recruitment competitive exams year after year after year, be it any state, be it any other party in any other state. And so, over more than 4 million tweets, many of them are saying that there were actually more than 6 million tweets, but apparently Twitter also deleted some of these tweets that were being made with the trending hashtag of Modi Rozgar Do, Modi Job Do. And that's the issue that we are back today to focus on, because that's the issue we have raised on People's Editor earlier tonight. And we are joined by a panel of people. These are educationists, these are students, these are career aspirants with me tonight on the show. Ravi Mohan Mishra, popularly known as Ramo Sir. He has his own YouTube educational station as well, Examo, which is very popular with students. Also with me, Dr. Gaurav Garg, founder for the Study IQ Education, co-founder. He's also somebody who's been prominently, in fact, involved with educational issues with students. I will be joined by Himanshi Singh. She is an educationist and a YouTuber as well. Along with us, there will be Alok Joshi. He is a senior financial journalist who will be joining me from Mumbai. Aarti Jha is a young woman here who has been a job aspirant, a career aspirant. She has been writing some of the government exams herself. Also with us in a short while from now, Mr. Yashovardhan Azad, who has been a former IPS and the former Central Information Commissioner. Abhinay Sharma, somebody who actually is responsible for this trend to have started, also will be with us. आरती, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपकी बैकग्राउंड के बारे में हमें बताइए. ये जो ट्रेंड है मोदी रोजगार दो, हाउ डज इट रिफ्लेक्ट व्हाट यू वांट? Ma'am, coming from very low income family, I need रोजगार at the very time. आपकी फैमिली के बारे में बताइए मुझे. हाँ. क्या करते हैं आपके फादर? आपने क्या पढ़ाई की है? मैंने M.Com किया है फ्रॉम इग्नू, बिकॉज़ मुझे प्रिपरेशन के लिए टाइम चाहिए था इसलिए. और मेरे पापा टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम करते हैं और जहाँ पे जॉब हमेशा सिक्योर नहीं रहती, टाइम टू टाइम वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट फेस करना ही पड़ता है. तो उस क्राइसिस से बचने के लिए आई थॉट कि मुझे भी इस एग्ज़ाम सीजीएल इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए, सो दैट मुझे ये फ्यूचर में ऐसी सिचुएशन नहीं देखनी पड़े. बट व्हेन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन, और भी बहुत कुछ है जो एस्पिरेंट को फेस करना पड़ता है. आपको विद इन 1 ईयर में जॉब नहीं मिल जाएगी. यहाँ पे इतने सारे देयर आर एन नंबर ऑफ लूप होल्स इन दिस एग्जाम रिक्रूटमेंट प्रोसेस. विच इज द एग्जाम जो आप प्रिपेयर कर रही हैं, व्हिच यू हैव बीन एसएससी सीजीएल. आप एक बार दे चुकी हैं या देने वाली हैं? कब दिया था आपने? एसएससी सीजीएल 2019 का दिया था.
Ramo, give us a sense. I mean, a lot of this agitation actually started with SSC CGL, and in fact, Anupam is also here with us, who is the national convener for Yuva Halla Bol. We'll also be joined by Gaurav with us, who is also with Yuva Halla Bol and an aspirant himself. And Anupam, I'll come to you as well. लेकिन Ramo, आप बताइए, what is the reason behind this trend? थोड़ा explain कीजिए to the viewers who do not understand perhaps कि ये हंगामा क्यों मचा है ट्विटर पे. इसमें तो रीज़न बिहाइंड द ट्रेंड इसी में छुपा हुआ है कि आखिर सोशल मीडिया पे बच्चों को आने की ज़रूरत क्या पड़ती है. और अगर इतनी संख्या में, मैं आपको अगर ट्वीट की संख्या बताऊंगा तो पिछले 4 दिनों में जो 3-4 हैशटैग चले हैं उसमें कम से कम 2 करोड़ के ऊपर ट्वीट हुए हैं. आज ही जो ट्विटर हैशटैग चला है उसमें 8 मिलियन तो मैंने नंबर देखा हुआ है. उसके बाद वो डिक्रीज़ हुए, जो भी हुआ, हमें आज ही लगता है कि आज 1 करोड़ से ऊपर ट्वीट हुए हैं. सवाल यह कि बच्चा आखिर ट्विटर पर कैसे आता है. उसके अंदर एक गुस्सा है, एक एंगर है प्रोसेस को लेके, कि जब उसकी वैकेंसी आती है, यहाँ मैं उस बात की बात ही नहीं कर रहा हूँ कि वैकेंसी डिक्रीज हो रही है या नहीं हो रही है, वो मुद्दा नहीं है. मुद्दा यहाँ पर यह है कि जो वैकेंसी सरकारी में आती भी हैं, क्या वो समय से भरी जाती हैं, क्या वो परीक्षाएं समय से होती हैं. पहले नोटिफिकेशन का कोई टाइम नहीं. यूपीएससी जैसी परीक्षा में लोगों को पता है कि जून में प्री का एग्जाम होना है, मेंस का एग्जाम कब होता है, तो वो लोग उस हिसाब से प्लान करते हैं. लोग नौकरियां छोड़ के आते हैं कि चलो 1 साल तैयारी करेंगे, 1 अटेम्प्ट देंगे, फिर वापस जॉब में जाएंगे और साथ साथ हम एग्जाम देते रहेंगे. यहाँ कोई श्योरिटी नहीं है कि कब जनवरी में प्रोसेस शुरू होगा या अक्टूबर में शुरू होगा. कई बार प्रोसेस कंप्लीट होने में 3 से 4 साल लगते हैं. तो ये बहुत बड़ा पेन है. उन्हें क्लैरिटी नहीं है कोई कि एग्जाम कब होगा, कब नहीं होगा, वैकेंसी कब आएगी, नहीं आएगी. So basically they're not able to take a decision about their life. Anupam, ये एसएससी का जो मुद्दा है, this is something जो आप लोगों ने पिछले 2-3 सालों से लगातार रेस किया हुआ है युवा हल्ला बोल प्लेटफॉर्म के जरिए. एंड why is it कि जो आपको मेन प्रॉब्लम्स क्या लगती हैं जिसमें हम देख रहे हैं कि यू नो व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, द नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, और कितनी इनटेक हो रही हैं, अगर हो रही हैं, वैकेंसीज कैसे डाउन हुई हैं ओवर द ईयर. So, Smita ji, let me begin with a data which was collated in 2018, which said that over 24 lakh government jobs are lying vacant. These are posts which are sanctioned, yet they are lying vacant across states and also nationally. तो ये जो 24 लाख का आंकड़ा जो 2018 में था, वो संभवतः अभी तो और भी ज़्यादा बढ़ गया होगा. लेकिन गवर्नमेंट का फोकस जो होना चाहिए था, और बहुत आसान था कि नोटिफाई करके आप रिक्रूटमेंट प्रोसेस अगर टाइम बाउंड ढंग से चलाते हैं और इन सबको भर देते हैं, तो एक इंडिया जैसे कंट्री में जहाँ पे कि 65% पॉपुलेशन अंडर 35 है, जिसको हम डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं, कह के खुश हो लेते हैं कि भारत उस मायने में बहुत फॉर्चुनेट है. लेकिन वहाँ पे अगर आप उस यूथ एनर्जी को रोज़गार के अवसर नहीं देंगे, उनको मौका नहीं मिलेगा, तो वो जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो तो डिज़ास्टर बन जाएगा. इस गवर्नमेंट में क्या हुआ है, आई थिंक देयर हैज़ बीन समथिंग एट अ पॉलिसी लेवल, बिकॉज सिंस 2014 देयर हैज़ बीन अ ग्रेजुअल डिक्लाइन in the number of vacancies being notified through SSC or through IBPS or through UPSC or through any other ministry or recruitment board. तो हर जगह there is a decline in vacancy. पहले हम लोग शोर करते थे, समझ नहीं आता था कि भाई इसमें सरकार को दिक्कत क्या हो सकती थी. अब सेकेंड टर्म में मोदी गवर्नमेंट की हम लोगों को बहुत क्लियर समझ में आ रहा है. वी आर प्रोबब्ली गेटिंग द आंसर कि वाई that recruitment was not being undertaken. अब वो दिख रहा है कि जो आप प्राइवेटाइजेशन देख रहे हैं नेशनल एसेट्स का, पब्लिक एंटरप्राइजेस का, जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, तो गवर्नमेंट इज क्लियरली फोकस्ड. दे हैव अ क्लियर policy understanding of what they to are do. moving away from giving government jobs, but you know that's another question I'll be raising in the course of the conversation as to why not aspire for private jobs instead. That's a question a lot of you are asking on Twitter. Abhinay Sharma is here with us. Abhinay, give us a sense. जो आज आप लोगों का मेन डे था इस टॉपिक को ट्रेंड करवाने का, आपको लगता है जो आप लोग हासिल करना चाह रहे थे, जो हल्ला, कम से कम जो अथॉरिटीज हैं, प्रधानमंत्री हैं, वो आपकी बात को सुने, ऐसा कुछ हो पाया है? नहीं, कुछ भी नहीं हो पाया है. एक्चुअली जब हमने लास्ट टाइम ये चीज की थी तो कुछ चीजें हो गई थी, तो अभी हमने फिर से किया, तो गवर्नमेंट को भी ये लगा कि यार ये बार बार करेंगे. तो अब गवर्नमेंट का सीधा इंस्ट्रक्शन मेरे हिसाब से तो यही है कि इस बार ट्विटर कैंपेन को बिल्कुल इग्नोर कर दो. जैसे ये चाहते तो कुछ एसएससी नोटिफिकेशन निकाल सकती थी, ये कह सकती थी कि हम 5 दिन के अंदर मार्क्स दे देंगे. मतलब छोटे मोटे लेवल पे कुछ चीजें हो सकती थी, कुछ नोटिफिकेशंस निकाले जा सकते थे, बट वैसा कुछ नहीं किया गया. तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि अब ट्विटर कैंपेन से कुछ नहीं होने वाला है, कि सरकार ये जानबूझ के कर रही है. देखिए, एक तो ये था कि सरकार को याद दिलाना, तो उस चीज में तो हम सफल रहे कि हमने याद दिला पाए हैं, हम उनको जगा पाए. बट अगर वो उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं लेना चाहते तो अब क्या किया जा सकता है, यही हम सोच रहे हैं
कि आगे अब हमारी प्लानिंग क्या होनी चाहिए। बाकी मिला कुछ भी नहीं है। इतना हुआ है आज की यूपी की कुछ वैकेंसीज आ गई यूपीएसआई की, वही वाला है, वैकेंसी तो पहले भी आई है, वही ठीक तरीके से नहीं फिल हुई, तो इस पे अब खुश होके क्या करें कि हाँ यूपीएसआई की वैकेंसी आ गई है तो ये बहुत अच्छा कुछ होने वाला है। कितने साल में वो भरी जाएंगी, वो भी 4 साल लगाएंगी, तो कोई मतलब उसका भी है नहीं। लेकिन अभिनय, आपको लगता है कि एक क्रॉस सेक्शन ऑफ सपोर्ट आप लोगों को मिला है इसमें? क्योंकि जब आप लोगों ने प्रधानमंत्री का नाम जोड़ा है इस ट्रेंड के साथ में, और यहाँ हालांकि ज्यादातर लोग, जहां तक मेरी जानकारी है, ए पॉलिटिकल है। अनुपम कुछ वक्त के लिए योगेंद्र यादव की स्वराज पार्टी के साथ जरूर जुड़े थे, बाद में उन्होंने छोड़ दिया था। तो इसमें जो ये लोगों का कहना है कि भाई ये ऑपोजिशन पार्टीज हैं, ये पॉलिटिकल कैंपेन है, ये बहुत ज्यादा कोई बड़ा मसला नहीं है, उस पर आप क्या कहेंगे अभिनय? नहीं, आप कल भी, मैं एक चीज आप मुझे बताओ, जो पार्टियां चुनाव में जीत नहीं पा रही, अपनी जमानत नहीं बचा पा रही, उनके कहने पे 10 मिलियन ट्वीट्स हो सकते हैं क्या? आप मुझे बताइए। अगर लोग उनकी इतनी ही बात मान रहे तो वो चुनाव में जीत क्यों नहीं रही है? तो क्या ऐसा हो सकता है कि एक पार्टी के कहने पे पढ़ा लिखा युवा सिर्फ रोजगार मांगने के लिए ट्वीट करेगा? तो ये एकदम बहुत ही वाहियात लॉजिक है, इसका कोई सेंस नहीं है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसा कर रही है इसीलिए ऐसा हो रहा है, और ये सबके खिलाफ है। जो सरकार अभी है हम उसी से सवाल कर सकते हैं, उसी से पूछ सकते हैं। बाकी आप देखेंगे तो ये रोजगार वाला आंदोलन और राज्यों में भी चल रहा है जहां बीजेपी सरकार नहीं है, तो वहां भी लोग रोजगार के लिए बात कर रहे हैं, चाहे वो राजस्थान हो या और भी जगह, या दिल्ली में भी। कल आप देखेंगे कि जब और आम आदमी पार्टियों के बड़े बड़े नेताओं ने ट्वीट किया कि मोदी रोजगार दो, तो मैंने उनको भी रिट्वीट करके कहा कि पहले आप दिल्ली में तो रोजगार दो जो वैकेंसी 2014 से फंसी हुई है। तो ऐसा नहीं कि हम किसी स्पेसिफिक है कि इस पार्टी के खिलाफ ये आंदोलन है, ऐसा एकदम नहीं है। ये सिर्फ बेरोजगारी के खिलाफ आंदोलन है कि बेरोजगारी पे आवाज उठे। बेरोजगारी के खिलाफ आंदोलन है, ये किसी पार्टी को टारगेट करता हुआ आंदोलन नहीं है। लेकिन अभी नहीं बने रहिएगा। हिमांशी, आप बताइए, आप स्टूडेंट्स के साथ डील करती हैं, आप खुद यंग हैं, why did you decide कि this has to be a trend? Why the focus on government jobs? Why is there so much there of need for government jobs कि ये होनी चाहिए? मैम, ये मुद्दा बेसिकली एक दिन का नहीं है, जो बहुत लंबे समय तक सबने सफ़र किया है और देखा है कि हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, वो सिक्योरिटी या वो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर शायद कहीं और नहीं मिल पाता। सोसाइटी का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसमें गवर्नमेंट जॉब बहुत बड़ा हिस्सा रही है, और हम उसी की तरफ आज कोशिश करते हैं कि हम पढ़ाई करें और उसके बाद हम गवर्नमेंट को सर्व कर पाएं एक अच्छे ढंग से, और गवर्नमेंट भी हमें सिक्योरिटी दे पाए। तो ऑब्वियस है कि जब वो ट्रेंड बना हुआ है और लोगों को कहीं और सही मायने में रोजगार नहीं मिल पा रहा, तभी वो गवर्नमेंट की तरफ देखता है। और गवर्नमेंट की तरफ देखने के बाद भी यदि वहाँ जो स्ट्रक्चर है वो भी तरीके से नहीं चल पाएगा, तो फिर प्रॉब्लम बनी रहेगी। उसी की वजह से हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, सब अपना काम कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करके। तो जरूरी है कि गवर्नमेंट इसको सुने। डॉक्टर गौरव गर्ग, आप बताइए, टेल अस, बिकॉज वी आर सीइंग दैट PhD students with high qualifications, they are applying for the posts of PN. Why this need of a security of a government job? Explain to our viewers. A lot of people have been asking this. इसके बहुत सारे पहलू हैं और मैं आशा करता हूँ आप मुझे कुछ समय देंगे समझाने के लिए, क्योंकि आपके दर्शकों के लिए भी ज़रूरी है जानना कि लोग सरकारी नौकरी की तरफ इतना क्यों भाग रहे हैं। जैसे हमने कोरोना काल में देखा, भारत में 30% नौकरियाँ चली गई, लेकिन गवर्नमेंट जॉब्स कितनी गई? 0। तो अगर एक छोटे शहर का व्यक्ति ये सोचता है कि गवर्नमेंट जॉब्स की आकांक्षा है, तो हम उसको क्या कहें कि हम तुम्हारी आकांक्षा पूरी करेंगे या अपनी आकांक्षा बदल लो। दूसरी बात, ये एक भ्रांति फैलाई जाती है कि ज़्यादातर लोग गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागते हैं। अगर मैं 2011 सेंसस की बात करूं तो भारत में 15 से 34 साल उम्र के जो लोग हैं उनकी संख्या 43 करोड़ थी, आज बढ़ के 60 करोड़ हो गई है। इनमें से सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं 18 से 30 साल उम्र के लोग, जिनकी संख्या आज 50 करोड़ है। ज़्यादा से ज़्यादा भारत में गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करते हैं 5 करोड़, सारे एग्जाम मिला के, तो वो भी 10% हुआ। 90% युवा आज भी आज भी प्राइवेट पे ही निर्भर हैं। तीसरी बात, कुछ सेक्टर ऐसे हैं जिनमें सरकारी नौकरी ही है। अब मैं अगर सोल्जर बनना चाहता हूं तो कोई मेरी प्राइवेट आर्मी एयरफोर्स तो है नहीं, तो मैं तो सरकारी के तंत्र के थ्रू जाऊंगा, राइट। और हमें लगता है कि इतने सारे युवा सरकारी की तरफ भाग रहे हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि सारे युवा फॉर्म भरते हैं, फॉर्म इकट्ठे हो जाते हैं। हम कहते हैं 20 लाख फॉर्म भरे गए, 40 लाख फॉर्म भरे गए, तो हमें वो नंबर दिखता है। लेकिन अगर किसी राज्य में 2 लाख इंडस्ट्रीज हैं, सब में 500 युवा ने भी अप्लाई करा, तो 2 लाख इंटू 500 10 करोड़ लोग हो जाते हैं। तो वो बिखरे हुए तो हमें नजर नहीं आते, लेकिन वास्तव में 90% युवा सरकारी नौकरी पर निर्भर हैं। अब मान लीजिए कौन इंजीनियर खुश है कि 10 लाख रुपए की प्राइवेट कॉलेज से इंजीनियरिंग की डिग्री लेके और 27,000 की क्लर्क की नौकरी के लिए अप्लाई करे? ये तब होता है जब आपके पास प्राइवेट में भी नौकरियां नहीं है, तो प्राइवेट वाला भी उतना ही परेशान है और गवर्नमेंट वाला भी उतना ही परेशान है। हमने गवर्नमेंट को इसलिए टारगेट किया क्योंकि हम गवर्नमेंट के एजुकेशनिस्ट हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर इज नॉट एनी बेटर देन द गवर्नमेंट सेक्टर। Okay, you're saying that it's a dismal scenario everywhere, be it private or be it government. Govind Mishra, let me get a word from you. आप किसकी तैयारी कर रहे हैं, कब से तैयारी कर रहे हैं और आपकी एक्सपीरियंस क्या रही है इन एग्जाम्स की? मैं CGL की तैयारी कर रहा था और 2018 के बाद मैंने तैयारी छोड़ दी।
2018 का एक बड़ा इशू जिसका जिक्र आपने शुरू में किया, जिसमें एक बड़े लेवल में करप्शन हुआ। हमारे पास तमाम सबूत थे जिसको लेके हम कोर्ट के पास गए, सरकार के पास गए, उसकी बड़ी सीबीआई जांच भी हुई, जिस देश भर में हल्ला हुआ कि ये गवर्नमेंट जांच करवा रही है, लेकिन उस जांच से कुछ नहीं निकला। और ये जो सपना होता है, ये सरकारी नौकरी का सपना जो आप कह रहे हैं क्यों गवर्नमेंट जॉब, तो ये सपना देखता है, एक पिता देखता है कि बेटा सरकारी नौकरी आएगा तो घर का विकास होगा, घर का डेवलपमेंट होगा, एक स्टैंडर्ड का चेंज होगा कि हम किस स्टैंडर्ड लाइफ जीते हैं उससे एक चेंज आएगा। उस सपने को देख के सरकारी नौकरी की तैयारी करने आता है, और यहाँ तैयारी करने के बाद जब वो परीक्षा देने जाता है तो उससे पहले पता चलता है कि भ्रष्टाचार के चक्कर में उसका पेपर पहले लीक हो गया है और कोई उसमें जवाबदेह नहीं है। हम सबूत ले जाके दे रहे हैं कि हमारा एग्जाम शुरू होने से पहले ये पेपर का आंसर की है, लेकिन कोर्ट मानने को तैयार नहीं है। ये कहा जाता है कि अगर एक व्यक्ति के साथ भी अन्याय हुआ तो कोर्ट उसे क्षमा नहीं करेगा, पूरी परीक्षा व्यवस्था को देखी जाएगी। यहाँ तो बड़े लेवल पे करप्शन होता है और कोई क्या आपने कोई प्राइवेट नौकरी आप करते हैं, क्या आपने ट्राई की? अभी मैं जैसा बताया कि 2018 के बाद काफी मैं इससे परेशान हो गया और मैं प्राइवेट सेक्टर में अप्लाई किया और मैं अभी एक प्राइवेट फर्म में काम कर रहा हूँ। लेकिन सपने तो अभी भी मेरे हैं, अभी भी मैं परीक्षाएं दे रहा हूँ और कोशिश है कि कहीं सरकारी नौकरी अगर ईमानदारी से होती है तो मेरी वहाँ नौकरी लगे। Abhinay, come in on this issue. I will also be playing out, in fact, some of the reactions that have come for us, on Twitter of people who have been uploading their videos, some questions that people have been raising of criticism, कि आखिर क्या अपने पे भरोसा नहीं है? अगर देश को आगे बढ़ना है तो सरकारी नौकरियों का जो बोझ है वो तो ऐसे भी 3 करोड़ की आप बात कर रहे हैं 50 करोड़ की वर्क फोर्स में, तो फिर ये जो पूरा हल्ला मचा है, क्या ये सिर्फ सरकारी नौकरियों को लेकर है या आज ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर है? ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर के है। आप एक बात बताइए, जो लोग ये कह रहे हैं कि सरकार खुद पे भरोसा नहीं है, क्या सरकार को खुद पे भरोसा नहीं है जो सरकार चीजों को प्राइवेटाइजेशन कर रही है? इसका मतलब सरकार को भी भरोसा नहीं है। तो ये कैसी बात है कि खुद पे भरोसा नहीं है इसीलिए मैं जो है गवर्नमेंट जॉब की तरफ भाग रहा हूँ। और सरकार अगर प्राइवेटाइजेशन कर रही है, लोग कह रहे हैं कि आज सरकार सारी चीजों को प्राइवेट कर रही है, तो क्यों सरकार नहीं कह सकती अडानी अंबानी से ही कह दे कि आप लोग भी अब वैकेंसी निकालो? जब सरकार प्राइवेटाइजेशन को अच्छा मान रही है तो क्या प्राइवेट कंपनियों के लिए भी सरकार कुछ रूल बना दे? जैसा कि अभी गौरव सर ने कहा कि कोरोना में इतनी सारी वैकेंसी, इतने सारे लोगों की जॉब छूट गई, तो अगर यही सरकार उन कंपनियों को ये कहती कि आप किसी को भी जॉब से नहीं निकालेंगे, हम आपका टैक्स माफ कर देंगे, हम आपको सपोर्ट देंगे, जैसे मोदी जी कहते हैं कि अगर आप बिजनेस करते हो तो हम आपको सपोर्ट देंगे, तो सरकार ने ये क्यों नहीं किया? आप बताइए, सरकार ने उस कोरोना काल में प्राइवेट लोगों को क्या सपोर्ट दिया? तो वो डर है लोगों के भीतर, और ये कोरोना काल में ही नहीं है कि प्राइवेट जॉब में गारंटी नहीं है। सरकार ये गारंटी दिलवाए प्राइवेट वालों से। जैसे सर ने कहा कि भाई आर्मी तो उसमें गवर्नमेंट जॉब वाले ही हो सकते हैं, जहां पे सरकार की सिक्योरिटी की बात है वहां पे प्राइवेटाइजेशन क्यों नहीं हो रहा? पुलिस में भी प्राइवेटाइजेशन कर दीजिए। अभी नहीं, आप हमारे साथ बने रहिए, इस सवाल को हम दूसरे हमारे गेस्ट के पास भी लेकर जाएंगे, और साथ ही मिस्टर यशोवर्धन आजाद, who's been the former IPS, a former, in fact, CIC, he's also joined us. But before I go to Mr. Azad, Anupam, Mr. Azad is here with us, somebody who has known the system, seen the system. Give us your experience of, when it came to the CGL exams के issues. Patterns में problem क्या होती हैं? वो रेलवे रिक्रूटमेंट्स हो या दूसरे एग्जामिनेशंस हो, what is exactly the problem that is happening with these exams? No, the core issue is that there is a huge load of government posts which are lying vacant, and the government never shows interest in directly notifying and recruitment and recruiting students through those processes. As I told you earlier, there were over 24 lakh posts in 2018. CGL SSC की अगर बात की जाए तो CGL में 2014 के करीब 20,000 के लगभग वैकेंसीज निकलती थी। अभी वो धीरे धीरे घटते घटते 6,000 के लगभग आ गया है। सिविल सर्विसेज में 1400 के लगभग वैकेंसीज निकलती थी, वो अभी घट के 800 के करीब आ गया है। IBPS जो बैंकिंग के लिए जो होता था उसमें 20,000 के करीब वैकेंसीज निकलती थी, वो घट के बिल्कुल मिनिस्क्यूल हो गया है। तो ये जो इतना, और ये जो तर्क आप जिस पे इतनी चर्चा हो रही थी, आप सवाल पूछ भी रहे थे कि बार बार जो ये कहा जाता है कि सबको क्या सरकारी नौकरी मिल जाएगा, जो लोग इस तर्क हमारी बात को काटते हैं वो ये कहते हैं कि सबको सरकारी नौकरी कैसे मिल जाएगा। तो भाई सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो समझने की ज़रूरत है सबको, आपके दर्शकों को भी, कि यहाँ पे कोई भी ये डिमांड नहीं कर रहा है कि सबको सरकारी नौकरी मिल जाए। किसी ने, मुझे लगता है, एक बार भी ये नहीं कहा है कि 50 लाख अगर एप्लीकेंट्स किसी पर्टिकुलर SSC के एग्जाम में अप्लाई कर रहे हैं तो सबको सरकारी नौकरी मिल जाए। हम तो बस इतना कह रहे हैं कि जितनी सरकारी नौकरियां हैं वो तो दे दो।
ये दो अलग अलग बातें हैं। That's a very important point. You know, Mr. Azad, if I could bring in on this debate, sir, thank you so much for finding time. We are trying to listen in to all the concerns that these educationists, students, aspirants want the governments, be it in states at the center, to sit up and take notice. As somebody who has seen the system so closely, sir, tell us, what really plagues, you know, for a country that where we see a UPSC exam is conducted in all fairness, in all smoothness, why are the other exams so plagued with problems, sir, in terms of smooth recruitments or fair process of recruitments? सबसे पहले दो बातें कहना चाहूँगा। एक तो ये कि बेरोजगारी इस देश के नौजवानों के लिए एक ऐसा श्राप है जिसको अगर हमने नहीं सुधारा जल्दी तो ऐसी विषमताएं पैदा होंगी जिन्हें सुधारना मुश्किल होगा। दूसरा ये कहना चाहूँगा और आपको बधाई देना चाहूँगा कि आपने बेरोजगारी से विषय ये प्रोग्राम किया है। Can you hear me? Yes, I can. Please, sir. Oh, yeah. सबसे पहले दूसरी बात ये कहना चाहूंगा कि आने वाले दिनों में सरकारी नौकरियां कम से कम होती जाएंगी, इसमें कोई शक नहीं है। अभी भी सरकार में जो ट्रेंड है वो आउटसोर्सिंग का है और कितनी ऐसी नौकरियां हैं वो चली गई हैं, उनकी भर्ती नहीं हो रही है। लेकिन एक प्रश्न जो बिल्कुल सही कहा नौजवानों ने वो ये है कि जितनी अगर वैकेंसीज है उसकी भर्ती क्यों नहीं की जाती है। आपको याद होगा बिहार के चुनाव के पहले सभी पार्टियों ने यह कहा था कि सबसे पहले हम रिक्त पदों की भर्ती करेंगे। पहली बात, भर्तियों की समस्या ये है कि इतने ज्यादा लोग एक छोटे नंबर के पोस्ट के लिए आते हैं तो वो एक तरह से दे आर ओवरवेल्म्ड। लेकिन बात ये है कि जब यूपीएससी एक बड़े ही अच्छे तरह से व्यवस्था कर सकती है, वहां पर कम से कम 3 से 5 लाख लोग 1000 पोस्ट के लिए सिविल सर्विसेज में परीक्षा देते हैं और उसकी व्यवस्था जब इतनी अच्छी तरह से की जा सकती है तो स्टेट्स में भी ये अवश्य किया जा सकता है। लेकिन दुख की बात यह है कि स्टेट में कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। आपको व्यापम वाला केस मध्य प्रदेश का याद होगा जिसमें प्रोफेशनल बोर्ड एग्जाम, वो टेक्निकल एग्जाम्स के लिए लोग इम्पर्सोनेट करके बैठते थे और नौकरियां इसी तरह दी जाती थी और वो धांधली 1990 से चली आ रही है। और इसलिए मैं आज के नौजवानों को ये कहना चाहूंगा कि सरकार अब नौकरियां कम से कम देगी, लेकिन ये आवश्यक है कि अपनी आवाज उठाते रहें कि रिक्त पदों की भर्तियां जल्दी से जल्द शीघ्रता की जाए और इसके लिए जब तक उन पे दबाव नहीं डाला जाएगा तब तक वो ये भर्तियां नहीं करेंगे। आपको ये जानना चाहिए, एक अंतिम बात ये कहना चाहूंगा कि पुराने जमाने में भर्ती करना आसान था। पुलिस की भी किसने आउटसोर्सिंग की बात कही, ये भी सही है, पुलिस में भी आउटसोर्सिंग किया जा रहा है काफी हद तक। पुराने जमाने की भर्तियां आसान थी, डायरेक्टली आप भर्ती कर सकते थे, लेकिन अब जब डिजिटल प्रणाली आई है जिसमें काफी ग्लिचेस हैं, इतने लोग आए हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, इसमें ये गड़बड़ियां होती रहती हैं और इसलिए सारे जो बड़े रिक्त पदों की भर्ती होती है उसके लिए प्राइवेट सेक्टर को वो भर्ती करने दे दिया जाना चाहिए ताकि सरकार पर किसी प्रकार का आरोप नहीं आए। लेकिन पता नहीं क्यों सरकार ये नहीं करती है, इसलिए दबाव डाला। Sir, just a clarification, help me understand. Are you saying that, you know, when these examinations are conducted for government posts, that it should be a private agency that does it? Is that what you're saying, sir, or did I hear you wrong? No, you're right. What I'm saying is UPSC conducts its exams on its own. But for example, whenever you have, for example, 30 lakhs people applying for a job which is say 1,000 in number, then it's better to outsource it to a private party so that there is no allegation at all of either, and you can catch somebody either for delay or for anything else. And this should be the trend now. Okay, sir, I'll in fact bring in Abhinay and the others also on this suggestion in the next segment. But before I go to a break, Mr. Alok Joshi, if you can hear me, sir, tell me, we are debating today's economy mein how serious is the job crisis that we are talking about. I saw a couple of tweets where people said if the government could be so sensitive to one single tweet of Rihanna and react so much, its government ministries, its government cabinet ministers, but why has it chosen to stay silent on this issue despite millions of tweets by youngsters today?
So this is a pertinent question. Why is the government not responding? And it's not the first time that this question has come up. The government has, if you remember, government has been trying to circumvent this question by saying that job and employment are two different things. And if you remember the latest Bihar elections, the Janata Dal Rashtriya Janata Dal, Rashtriya Janata Dal came up with the slogan of 10 lakh jobs, 10 lakh government jobs. Whereas the BJP and JDU combined, then again came back with an employment slogan. So there is a disconnect between the desires of today's youth and the government that had promised 2 crore jobs every year. So it's a pertinent question that why are you not addressing India's own youth, and why are you responding so quickly to a tweet by Rihanna? I didn't really know Rihanna. I had heard her name, but I didn't know who she is before this fiasco. Yeah, I think many people did not know about Rihanna or Mia Khalifa before the government started reacting. I request all of you to stay on with us, because when we come back after this break, we are going to talk about solutions. I know there are enormous problems and challenges. And before I roll into the break, we are leaving you with these 2 comments of our viewers who tweeted to us their video messages. Listen into them and come back after this short break to continue with this discussion. लेकिन वो तब कभी भी रिप्लाई नहीं करते हैं। एसएससी की वैकेंसीज हर साल घटती जा रही है, क्यों घट रही हैं, उसकी क्या वजह है? एसएससी के एग्जाम में हर साल कोई ना कोई दिक्कत हो जाती है, कभी यूएफएम की दिक्कत हो जाती है, कभी कोई स्कैम हो जाता है। तो एसएससी की एक जो कमीशन की रिलायबिलिटी होती है वो कहाँ है? एसएससी का जो एग्जाम प्रोसेस है वो इतना धीरे क्यों है? अभी इंटेलिजेंस ब्यूरो ने जो एग्जाम कराया था दिसंबर में उसकी नोटिफिकेशन निकाली थी और फरवरी में एग्जाम करा लिया गया, और उसके 1 हफ्ते में उसकी आंसर की भी रिलीज कर दी गई। तो ये जो और कमीशंस हैं और डिपार्टमेंट्स हैं और जो और एग्जाम्स कराए जाते हैं वो इतने अच्छे से होते हैं, एसएससी क्यों नहीं करा सकती? एसएससी अपने एग्जाम्स आईबी, यूपीएससी, सीडीएस, एनडीए की तरह क्यों नहीं करा सकती है? प्राइवेटाइजेशन को लेकर भी बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे हैं कि आप क्वालिफाइड हैं तो आप प्राइवेट में क्यों नहीं करते। तो उस पर मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि प्राइवेट जॉब करने हमें कोई आपत्ति नहीं है। कोई भी गवर्नमेंट जितनी भी प्राइवेटाइजेशन कर रही है हम उसका समर्थन करते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि अगर हर कोई प्राइवेटाइजेशन के साथ है ज़रूर, लेकिन अगर हर कोई प्राइवेट जॉब ही करेगा तो आपके सरकारी संस्थान में आखिर कौन काम कर रहा है? आप किसी भी काम कराने के लिए जाते हो किसी भी संस्थान में, वो काम वहाँ पे तुरंत तो कभी नहीं होता, हमेशा समय लगता है। वजह सिर्फ 2, एक स्टाफ की कमी और दूसरा काम करने वालों के अंदर क्षमताओं की कमी। It's a Twitter storm. Millions of tweets by active netizens, students, educationists asking for jobs. They're asking the government, where are the promised jobs? The promises of 2 crore jobs a year, be it in terms of the private sector jobs or the government recruitments and the many anomalies that plague the system today when it comes to the SSC, CGL exams, the railway recruitment boards. Why are these exams not being conducted in a fair, timely, transparent manner? That's been one of the key questions that all our guests here tonight on People's Editor have been asking. And also with me, Abhinay Sharma. Abhinay, you heard Mr. Yashowardhan Azad before the break. आप बताइए, जो सर बता रहे थे कि अगर ये जो स्टेट्स की पब्लिक सर्विस कमीशंस की एग्जाम्स हो रही हैं, इनको अगर प्राइवेट एजेंसी करवाती है, क्या आपको लगता है उसमें पारदर्शिता आ सकेगी? नहीं, अभी भी शायद सर को इस बारे में पता नहीं था, बट मैक्सिमम ये प्राइवेट एजेंसी ही करा रही है मैम। जैसे कि इसमें क्या है ना, दोनों इन्वॉल्व है। जैसे एसएससी गवर्नमेंट कमीशन हो गया, गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट हो गया, उसके साथ वो टीसीएस से एग्जाम करा रहे हैं। टीसीएस इसमें इन्वॉल्व है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। तो यहाँ पे या तो एसएससी गाइडलाइंस टीसीएस को नहीं दे रही कि किस तरीके से रिजल्ट निकलना चाहिए, तो जो ढील है वो गवर्नमेंट की तरफ से ही है। अदरवाइज तो जैसे हमने टीसीएस को देखा है, वो कॉलेज के लेवल पे रिक्रूटमेंट करती है, बहुत अच्छा काम करती है। तो टीसीएस का जो काम है वो काफी अप्रिशिएबल है। अब गवर्नमेंट उनसे काम नहीं ले पा रही है, किस तरीके से काम ले रही है, ये समझ पाना हम लोगों के लिए यहाँ से बैठ के मुश्किल है कि वो गैप कहाँ पर है। Mr. Azad,
you, as a former information commissioner, I'm sure you would have come across several RTI applications trying to look into what is the reason कि ये papers leak हो जाते हैं. कभी papers जो हैं they announce the date, लेकिन वो exam होने में महीनों लग जाते हैं, सालों लग जाते हैं. What is your understanding, sir? Are these state, parties in states can this kind of a delay happen without the connivance of authorities? दो बिंदुओं पे बात करना चाहूंगा. जैसा कि अभिनय ने कहा, वही मैं वही कह रहा था कि प्राइवेट आउटसोर्सिंग का मतलब है कि पूरी जिम्मेवारी उनको दी जाए. आपके गाइडलाइंस की जरूरत नहीं है. अगर वो पूरी ऑटोनॉमी के साथ अगर आप उन्हें ब्रॉड पैरामीटर्स दे दें और वो समय पे अनाउंस कर देंगे. और इसलिए ये इंक्वायरी करना बहुत ही जरूरी है, जो कि नहीं की जाती है इंक्वायरी, कि व्हाट इज द रीजन फॉर अ डिले. ऐसे में डिले होनी, यूपीएससी में कभी कोई डिले नहीं होता. किसी ने इंटेलिजेंस ब्यूरो के बारे में कहा, इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऐसा एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन है ही नहीं. मैं रह चुका हूं वहां पर, और हर बार जो भर्ती होती थी वो बिल्कुल समय पे होती थी. और तीसरी बात यह है कि जब मैं केंद्रीय सूचना आयुक्त था तो मेरे पास केसेस एसएससी के आते थे, और हमेशा उसमें कभी पारदर्शिता की समस्या होती थी, वेटिंग लिस्ट नहीं अनाउंस किए जाते थे, और ये कहते थे जब तक कि वो भर्ती नहीं हो जाएगी और नियुक्ति वाले नहीं आ जाएंगे तब तक हम उसको अनाउंस करेंगे. ऐसी कैसी भी समस्या बार बार होती रहती थी, और उन पे जवाब मांगना, जिम्मेवारी उन पे बराबर आती थी कि वो पारदर्शिता ज्यादा दिखाएं. मैं ये कहना चाहूंगा, जैसा कि बड़ी अच्छी बात आपने कही थी कि व्हाट इज द सोल्यूशन. सोल्यूशन ये है, सोल्यूशन द स्ट्रीट स्टॉर्म इज अ सोल्यूशन, ट्राई फॉर इट. इसमें कभी आप हतोत्साहित न हो. आरटीआई एक अनदर जरिया है इसके लिए. और तीसरा, आपको अकाउंटेबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट पे डालना पड़ेगा. जब भी कोई बाय इलेक्शन हो, जब भी ऐसी कोई बात हो, आपको ये मुद्दा उठाना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि बेरोजगारी समस्या अगर नहीं यहाँ पे इसका तरीका निकाला गया तो हम बिल्कुल पीछे रह जाएंगे. और चौथी बात यह है कि आपको ये बराबर स्टेट गवर्नमेंट पे प्रेशर डालना पड़ेगा कि भाई सारे एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकती है सरकार, तो इसके लिए वो प्राइवेट सेक्टर के लिए क्या एनेबलिंग एनवायरनमेंट अपने स्टेट में बना रही है कि वो आके इन्वेस्ट करें, फैक्ट्री लगाएं और नौकरी दें. जमीन की चाहे समस्या है, चाहे वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देयर सर. लेट मी गेट इन अ रिएक्शन सर. हाँ सर, यहाँ पे यशोवर्धन आजाद कह रहे हैं कि दो तीन चीजें हैं. एक तो भाई प्राइवेट एजेंसीज को आप ब्रॉड गाइडलाइंस दे दें, लेट देम कंडक्ट द एग्जाम्स इन अ फेयर मैनर. दूसरा, स्टेट गवर्नमेंट्स की अकाउंटेबिलिटी, कि अगर गवर्नमेंट जॉब सफिशिएंट नहीं है, आप प्राइवेट जॉब्स की इकोसिस्टम को क्रिएट कर रहे हैं या नहीं. हाउ डू यू प्लान टू डू दिस इन द डेज टू कम? सो इसके अंदर पहली चीज़ मैं कहूँगा कि ये उदाहरण देखने के लिए हमें किसी विदेश में जाने की ज़रूरत नहीं, ना ही बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है. एक IBPS का गठन किया गया था बैंकिंग एग्जाम्स के रिक्रूटमेंट प्रोसेस को हैंडल करने के लिए. मुझे जहाँ तक याद है 2011 या 12 में उन्होंने एग्ज़ाम लेना शुरू किया. 9 सालों में उनका कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जो लेट हुआ है. हर एग्ज़ाम समय से होता है. 15-20 दिन के अंदर प्री का रिजल्ट आ जाता है, फिर वो मेंस का एग्जाम करवा लेते हैं, उसका रिजल्ट आ जाएगा, इंटरव्यू हो जाएगा. लोगों को इवन डेट पता है कि 1 अप्रैल को IBPS PO का रिजल्ट आता है. मुझे याद है, मैंने उस एग्जाम को 2012 में फॉलो किया. मुझे आज याद है कि उनका हर साल 1 अप्रैल को रिजल्ट आता है. तो यहाँ सवाल ये है कि एक मैंडेट बिल्कुल क्लियर होना ज़रूरी है. और उस एग्ज़ाम में आज तक ये शिकायत नहीं आई कि पेपर आउट हो गया, पेपर लीक हो गया. नॉर्मलाइजेशन वो भी करते हैं, लेकिन आज तक कोई इशू नहीं आया कि नॉर्मलाइजेशन ख़राब हुआ है. तो अगर मैं इन संस्थाओं की बात करूं जो डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में, जैसे SSC हुआ, तो यहाँ पर वाकई में एक अकाउंटेबिलिटी मिसिंग है कि जिम्मेदार कौन है. मुझे लगता है कि अकाउंटेबिलिटी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लियर प्रोसेस का होना और इंटेंशन का होना. IBPS उसका जीता जागता उदाहरण है. अब अकाउंटेबिलिटी भी बिल्कुल होनी चाहिए. हमें आज ये नहीं पता है कि बच्चे के एग्जाम में प्रॉब्लम आ रही है तो कहाँ जाएं. SSC में इशू आता है तो आप SSC में जाओगे तो वो कहेंगे DOPT से पूछो. ये इस तरह का प्रोटेस्ट जब 2017 में हुआ तो बच्चे यही समझ नहीं पा रहे थे कि अप्रोच किसको करें, SSC से बात करें या DOPT से बात करें. अथॉरिटीज से कोई रिएक्शन अभी तक मिल पाता है आपको? Which are the agencies that people need to contact? Who actually should respond? Sit up and take notice. In fact, this is one of the concerns कि अकाउंटेबल कौन है ये पता नहीं चलता है. और अगर अभी इस पर ये बात करनी है हम लोगों को कि क्या सोल्यूशन है इस पूरे का, तो एक जो प्रपोजल आ रहा है कि हम प्राइवेट सेक्टर को अगर एग्ज़ाम्स कंडक्ट करने की जिम्मेदारी दे दें, इसके देखिए कई उदाहरण हैं. जिस 2018 के उस प्रोटेस्ट की बात हो रही है CGL को लेकर,
उसको भी सिफी ने कंडक्ट करवाया था। सबसे ज़्यादा गुस्सा उस प्राइवेट वेंडर के खिलाफ था। जब हम लोग कोर्ट में गए तो कोर्ट में हमने प्लीड ये किया था कि गवर्नमेंट खुद जिम्मेदारी ले। और उसके बाद आपने देखा होगा पिछले बजट में एनटीए अनाउंस हुआ था, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, एनटीए की तर्ज पे। तो सरकार तो कह रही है कि हम करेंगे तो बेहतर होगा, लेकिन अगर समाधान निकालना है तो पहले समझना है कि कोर इशू क्या है। ब्रॉडली स्पीकिंग, जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड टाइम बाउंड फेयर सिलेक्शन, एक लाइन में अगर कहना हो चाहिए क्या सबको, जॉब अपॉर्चुनिटीज को कम किया जा रहा है और जो कम है उसको भी टाइम बाउंड कैसे किया जाए, इसको लेकर भी हमने प्रपोजल दिया था एक मॉडल एग्जाम कोड का। ये हमने 2019 के जनवरी में प्रपोजल दिया। बार बार हम इसको कमीशंस को, रिक्रूटमेंट बोर्ड्स को लिखते रहे हैं, गवर्नमेंट्स को लिखते रहे हैं कि आप इस मॉडल एग्जाम कोड को लागू करिए। अगर इलेक्शंस टाइम बाउंड ढंग से हो सकते हैं तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्यों मैक्सिमम 9 महीने में पूरा नहीं हो सकता? और अगर पूरा ना हो तो किसी की अकाउंटेबिलिटी तो होनी चाहिए कम से कम। Dr. Gaurav Gav, you want to come in here, and do you think that there are some states which are maybe bigger villains than the others? No, if I say that, then it will become a political debate. But coming to the question that you posed, I think it's a very important question कि क्या प्राइवेट एजेंसी को कराना चाहिए? हमने सरकार चुनी है या हमने प्राइवेट एजेंसी चुनी है? क्या सरकार सारी अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो प्राइवेट एजेंसी को आउटसोर्स करेगी? और कल अगर प्राइवेट कंपनी में कोई करप्शन हो गया तो हम किसके पास जाएंगे? क्या हम धरना फिर प्राइवेट कंपनी के खिलाफ देंगे? तो हमने सरकार को चुना है, सरकार को ये काम करना चाहिए। और ये तो सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने वाली बात होगी। इनफैक्ट अगर स्टेट्स की जिम्मेदारी भी तो है ना, टू ट्राई एंड क्रिएट जॉब्स, द इकोसिस्टम्स दैट मिस्टर यशोवर्धन आजाद इज आल्सो टॉकिंग अबाउट। देखिए, जब हम एक प्राइवेट कंपनी को बीच में लाते हैं तो उल्टा हम सरकार को एक भागने का मौका दे रहे हैं। कल अगर उसमें कुछ अनियमितता होगी तो सरकार कहेगी तो प्राइवेट कंपनी की गलती थी, तो और प्राइवेट कंपनी में करप्शन नहीं होगी, इस बात की क्या गारंटी है? कल हम फिर किसके पास जाएंगे? मिस्टर आजाद, प्लीज कम इन ऑन दिस सर। सही काम कर रही है सरकार, के पास कैपेसिटी नहीं है कि अगर 1000 नौकरी है और उसके लिए 30 लाख आदमी आ जाएं, और इसके लिए आवश्यक है कि आप वो टेक्निकली प्रोफेशन जैसे आईबीपीएस और टीसीएस ऐसी संस्थाएं हैं उनको ये दें, ताकि पूरी पारदर्शिता के साथ वो ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करें, लिस्ट अनाउंस करें, टाइम को फॉलो करें, और इसलिए ये करें, इसीलिए ये किया जाता है। सरकार अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग रही है। सरकार जो लेकिन सर, जिन केसेस में जो अभी इन लोगों ने एग्जांपल्स दिए, तब तक ये डिलेज सॉरी टू इंटरप्ट, जिन केसेस में अभी लोगों ने एग्जांपल्स दिए कि जहां प्राइवेट एजेंसीज वर गिवन द टास्क एंड इवन दैट वाज अ मेस, where do these people go to, sir? What is the structure that should be created so that their grievances are heard? Nothing with the government. एक मैं बताता हूं आपको, ये जो सही बात कही कि हमें ये नहीं पता लगता है कि किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। 2 मिनट जरा आप दीजिए कि ये जो आरटीआई रिजीम आई थी, इसको सबसे ज्यादा इस्तेमाल नौजवानों ने किया है। और मैं आपको ये आग्रह करना चाहूंगा कि सारे नौजवान, कोई भी अथॉरिटी, एसएससी हो या कोई भी सरकारी संस्था हो, उसमें आप वो आरटीआई दरखास्त लगाएं। 10 रुपए में दरखास्त लगती है, और एक वहां पे पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर रहता है जिसकी ये जिम्मेदारी है कि वो सारी जानकारी आपको एक निर्धारित समय में दे, और जब वो नहीं हो आप एक दूसरा पर अपील कीजिए। अगर इस प्रकार 1000 अगर दरखास्तें लगती हैं, इससे फर्क पड़ेगा। और इसलिए मैं कहना चाहूंगा इसमें हतोत्साहित बिल्कुल ना हो, बल्कि इस प्रक्रिया को जारी रखें। Okay, thank you so much. Appreciate you joining us, Mr. Azad. But before I let you go, let's also hear in Abhinay. आप कुछ कहना चाहेंगे? मिस्टर आजाद ने जो अभी बातें कही कि ये जो आप लोगों की तरफ से कितनी पिटीशंस लाई गई हैं? मैम, हम लोगों की तरफ से काफी पिटीशंस जारी की गई हैं, और कोर्ट में अभी भी केस चल रहे हैं 18 को लेकर के, 17 को लेकर के, जिन पे अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। ठीक है, तो जो आजाद सर ने कहा और गौरव सर ने कहा, दोनों की बात बहुत ठीक थी कि हम कब तक अपनी जिम्मेदारियों से भागते रहेंगे। आजाद सर का ये कहना था कि भाई फ्रीलांसिंग आज एक कॉन्सेप्ट चल रहा है। फ्रीलांसिंग का मतलब ये होता है कि मुझे काम अभी है, समझ नहीं आप, मुझे 1 महीने तक काम है, तो मैं पूरे साल के लिए वो बर्डन अपने ऊपर क्यों रखूं? तो मैंने फ्रीलांसिंग काम कराया। लेकिन यहाँ पे बात क्या है कि गवर्नमेंट के पास इतने डिपार्टमेंट हैं कि उसको फ्रीलांसिंग की जरूरत नहीं है, उसको हर महीने कोई ना कोई एग्जाम कराना है। यही हमारी भी डिमांड है कि क्यों ना एक एजेंसी ऐसी क्रिएट की जाए जो पूरे भारत में, मान लेते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्रिएट की, वो हर राज्य सरकारों का भी एग्जाम ले रही है, जब एग्जाम हो रहा है उसका हम पूरे 12 महीने या 1 साल इस्तेमाल ठीक तरीके से कर पाते हैं, तो इसमें नुकसान कुछ नहीं है। गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी ज्यादा है प्राइवेट से, गवर्नमेंट वैसा सिस्टम क्यों नहीं क्रिएट कर सकती? बिल्कुल कर सकती है।
और जो आपने यूपीएससी और एसएससी ठीक को है। कंपैरिजन करने की बात की, उसकी एक छोटी सी वजह मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा, वो मुझे जरूर लगती है बार बार, कि यूपीएससी के जितनी भी एग्जाम्स हैं उनमें प्री एग्जाम सिर्फ क्वालिफाइंग है, जिसकी वजह से जो बहुत ज्यादा मास है वो करप्शन के बारे में सोच भी नहीं सकता। उसको लगता है ठीक है कट ऑफ ही तो पार करनी है। बट जो ये एसएससी या बाकी के एग्जाम है, इसमें क्या है कि प्री मार्क की भी उतनी ही वैल्यू है। तो 40 लाख लोग अगर प्री का एग्जाम भर रहे हैं तो उसको कंट्रोल कर पाना बड़ा मुश्किल है, इसीलिए बार बार पेपर लीक हो जा रहा है। आप समझ रही हैं? अगर यही चीज प्री क्वालिफाइंग हो जाए, जहां पे मार्क्स का कम या ज्यादा आना उतना मायने ना रहे, तो करप्शन इससे कम होगा। फिर मेंस में क्या होगा कि वो 2 लाख बच्चा जो प्री क्वालिफाई करके पहुंचेगा, उसकी मेंटेलिटी भी अच्छी होगी और वहां करप्शन को रोकना भी बहुत आसान होगा। Okay, there are very constructive points that you've made, Abhinay. Himanshi, जरा सा हमारे explain to our viewers. एक बच्चा when he starts to prepare for these exams and then the process is derailed, उसकी जिंदगी पे असर क्या पड़ता है? ये जो टाइमलाइंस अगर गड़बड़ा जाती हैं, what is the effect on the children and the students? मैम अभी कुछ दिन पहले मेरी एक स्टूडेंट से बात हो रही थी एंड शी इज़ अराउंड 26 और 27 एंड शी इज़ प्रिपेयरिंग, मतलब वो 21 साल से प्रिपेयर कर रही है, 21 साल की उम्र से। और अभी उसका ये कहना है कि मैंने, जैसे टीचिंग में होता है, हरियाणा टेट का एग्जाम है, राजस्थान टेट का एग्जाम है, यूपी टेट का एग्जाम है, सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट है, इतने सारे एग्जाम क्लियर करने के बाद वो ये बैठ के इंतजार कर रही हैं कि जॉब भर्ती की मतलब कब निकले जॉब के लिए, ये टीईटी परीक्षा करने के बाद। घर में एक माहौल बन जाता है कि भाई शादी करनी है या क्या करना है, मतलब अब क्या सीन है। उसको लगता है जो इंसान थ्रू आउट टॉपर, मैं जिसकी बात कर रही हूँ थ्रू आउट टॉपर मैं देख रही हूँ कि बीएड से लेकर के बीएससी से लेकर के हर जगह पर डीएलएड से लेकर के, उसके बाद उसके मन में मैं ये चीज़ देखती हूँ कि यार मतलब शायद मैं मतलब काम की नहीं हूँ, या फिर वो एक डिप्रेशन जैसा मुझे फील हुआ बात करके। और ऐसा मैंने बहुत बार देखा है कि उसको लगता है जब देखो तैयारी करती रहती है, मैं तो हमेशा पढ़ाई में भी अच्छी थी लेकिन फिर भी बात नहीं बन पा रही। तो वो जो ये जो इतना लंबा प्रोसेस है कि हमें पता ही नहीं है कहानी कब से शुरू होगी और कहाँ खत्म होगी, और करें तो करें क्या मैम, जब लक्ष्य सामने होता है तब मजा भी आता है काम करने में। एक व्यक्ति है जिसको पता ही नहीं है कि लक्ष्य कब आएगा कब नहीं आएगा, फिर भी वो लगा हुआ है 1 साल 2 साल 3 साल। कोई एग्जाम दिया तो पता नहीं उसका रिजल्ट कब आएगा, कोई फॉर्म भरा तो उसका पता नहीं पेपर कब होगा 1-1.5 साल से, अगर पेपर हो गया इंटरव्यू का बात आई तो इंटरव्यू कब होगा किसी को नहीं पता। तो ये इतनी लंबी प्रोसेस हो जाती है। Very importantly, you are sharing the experiences of students here. I'll go to Mr. Alok Joshi also to take in comments about the private sector jobs. But Aarti, आप बताइए कि आपने जब तय किया that you want to prepare for the government exams and all, private job इस वक्त आप कर रही हैं, आप करना चाह रही हैं? मैम प्राइवेट जॉब क्योंकि अब मेरे एग्ज़ाम प्रिपरेशन में 2 साल से कर रही हूँ और बहुत ज़्यादा गैप आ गया है, तो मुझे नहीं लगता कि अब डायरेक्टली कोई मुझे वहाँ पर प्राइवेट जॉब में रखेगा। क्योंकि गैप है, मोस्टली गैप पे है, तो जनरली प्रेफर नहीं करते। और मेरे पास कोई ऐसी स्किल्स भी नहीं है जिससे वो मुझे हायर कर ले। जैसे लाइक आपने मीडिया का कोर्स किया है वो हायर कर लेंगे, लेकिन मेरे पास तो ऐसा कोई कोर्स ही नहीं है और मैंने ट्रेडिशनल डिग्री से हूँ, तो दे विल नॉट हायर मी। और दूसरी बात ये है कि मैंने प्रिपरेशन, हाँ हमारे पास सिर्फ नॉर्मल ऑप्शन बचते हैं, वो है होम ट्यूशन्स के, टीचिंग के। उसके थ्रू हम कब तक काम चला सकते हैं? हमारा टाइम यही है कि मुझे वेट करना है एग्ज़ाम के ज्वाइनिंग का। इसमें फिर हम Tier 2 जैसे केसेस हो जाते हैं, जैसे अभी 15-16 जैसे एग्ज़ाम हुए और 18 में जो उन्होंने एग्ज़ाम दिया उनका कुछ नहीं पता, वो धड़ल्ले से फेल हो गए ऐसे ही, तो उनको फिर से अपीयर होना है इन एग्ज़ाम्स में। तो इस एग्ज़ाम्स का भी कुछ नहीं है कंफर्म, और हम प्राइवेट जॉब्स में भी नहीं जा सकते वापस क्योंकि इतना प्रिपरेशन में गैप आ गया है। Mr. Alok Joshi, if you're hearing it, we hear these government claims कि we are going to give vocational trainings, there's going to be Skill India, there's going to be jobs. Here's a young girl here, she seems pretty depressed about how things have played out so far. Is this the harsh reality of India that we are looking at today, despite all the tall claims that are being made by our netas? ये बिल्कुल सही कह रही हैं आप स्मिता, और मैं आरती की बात सुन के मुझे याद आ गई वो बात जो मैं भूल गया था दरअसल, कि सच बात ये है कि हमारे स्कूल और कॉलेजेस ने हमको बहुत बुरी तरह फेल किया है, हमारे एजुकेशन सिस्टम ने फेल किया है। कहा जाता है कि साहब मैकॉले का सिस्टम है जो क्लर्क बनाता है, लेकिन माफ़ कीजिएगा आज की तारीख में पिछले 20-30 सालों में जो सिस्टम चल रहा है वो अब क्लर्क बनाने लायक भी वो नौजवानों को तैयार नहीं करता है। जो लोग कॉलेजेस से निकल के आ रहे हैं, जिस वक्त हम उनके जॉब इंटरव्यू ले रहे थे तो हमको पता चलता था कि ये इनको बेसिक ट्रेनिंग नहीं दी गई है। और जैसे अभी आरती कह रही हैं, अब एक और इंडस्ट्री साथ में खड़ी हो गई है, वो है कोचिंग की इंडस्ट्री। आपको लॉ के एंट्रेंस के लिए कोचिंग कराते हैं, आपको सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए कोचिंग कराते हैं, आपको स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तैयारी के लिए कोचिंग कराते हैं, और आप उस एग्जाम के लिए कोचिंग कर रहे होते हैं। आप अपनी जिंदगी में हर तरह की चुनौती के लिए तैयार नहीं हो रहे होते हैं। जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हमने इस तरह की कोचिंग की या नहीं की?
उसके साथ हम इस चीज के लिए भी तैयार हो रहे थे कि जो चुनौती सामने आएगी उसका सामना करेंगे। हम एक तरह की पढ़ाई लिखाई में हमारे टीचर्स थे, मैं भी सरकारी स्कूलों में पढ़ा हूँ, लेकिन उन टीचरों ने भी हम पर मेहनत करके हमको दुनिया देखना सिखाया। आज की तारीख में तकलीफ की बात यह है कि दुनिया देखना नहीं सिखाया जा रहा है स्कूल्स में, कॉलेजेस में, और उसके बाद ये सिचुएशन आ रही है जहां ये कह रही है कि सरकारी नौकरी एक समय के बाद नहीं मिलती है तो हम प्राइवेट सेक्टर की सोचेंगे, और प्राइवेट सेक्टर में कोई हमें क्यों जॉब नहीं देगा, क्योंकि 2 साल से हमने कुछ किया नहीं है और हमारे पास कोई स्पेशल स्किल है नहीं। तो जो वोकेशनल ट्रेनिंग की भी बात हो रही है अभी सरकार की तरफ से, और आज की तारीख में, आज अगर पिछले 2 दिन में आपने अखबार पढ़े हो तो एक नई चीज आ गई है, PLI। प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करने वाले जानते हैं वो PLI कहलाता है, परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव, यानी तनख्वाह का आधा हिस्सा ऐसा मिलता है, काम अच्छा करोगे तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। अब कंपनियों के लिए सरकार ने कह दिया आप रोजगार पैदा करेंगे तो आपको ये इंसेंटिव मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। आज सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है कि कंपनी प्लांट लगाएगी, उसमें रोजगार पैदा करेगी, सरकार उस कंपनी को मदद देगी और इससे देश में बहुत सारे रोजगार पैदा हो जाएंगे। मुझे पूरा शक है कि अब से 5 साल बाद, 10 साल बाद हम लोग एक बड़ा घोटाला PLI के नाम पर, जैसे हमने 2G घोटाला और 3G घोटाले सुने हैं, कोल स्कैम सुना है, इस तरह का एक PLI स्कैम आपको आने वाले दुनिया में दिखेगा, क्योंकि अभी भी नई That's really sad to know, आलोक जोशी। हमने एक सरकार प्रपोजल देती है और मुकाबला करो, बजाय उसके तरह। हाँ, ये बहुत दुखद बात है, if the government is saying that we will come up with a PLI proposal, and senior journalists like you feel that perhaps this is a way forward moving, we will only see corruption in this happening. It speaks volumes about what we are dealing with here. लेकिन गोविंद मिश्रा, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आपकी बैकग्राउंड में जब आपने तैयारियां की गवर्नमेंट एग्जाम्स और आपने वक्त जाया किया, उसका असर क्या पड़ा आपकी जिंदगी पर? असर ये पड़ा कि मैं बीटेक ग्रेजुएट था, मेरे साथ के जो दोस्त थे जो डायरेक्ट बीटेक करने के बाद जो प्राइवेट नौकरी में चले गए, उनके पास आज गाड़ी है, घर है, और मैं ये आया सपना देख के कि मैं बड़ी नौकरी हो जाएगी, गवर्नमेंट जॉब की नौकरी हो जाएगी, और आज मैं 15 से 20 हज़ार की नौकरी अब शुरू कर रहा हूँ। इतना वेट किया, 3 साल 4 साल की परीक्षाएं ठीक ढंग से हो। अब जैसे यूपी SSC की बात है, केवल SSC तो एक स्पार्क है, इसके अलावा तमाम ऐसे जो, अब मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, यूपी SSC से पिछले 4 साल में 24 भर्तियाँ निकली, और इन 24 में से 22 भर्तियाँ पेंडिंग हैं। बिहार की मैं बात करूं कि 2014 का बिहार SSC का पेपर अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। दिल्ली की मैं बात करूं, DSSB का अभी मेरा खुद का एग्जाम है, 2013 का एग्जाम है, टाइपिंग टेस्ट अब होने वाला है। तो देश भर में भर्ती प्रक्रियाएं इस तरह कर दी गई हैं कि वो सपने को कुचलने वाला है। अगर सरकार को केवल प्राइवेट वो चलाना है, प्राइवेट सरकार ही न कर दें हम। One final comment now. In fact, we are coming to the end of the show. रमो, आप बताएं, क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं कोचिंग इंडस्ट्री भी बहुत उभरी है इंडिया में, लोग सालों तक पैसे, इवन फॉर दीज एग्जाम्स, SSC, आप लोगों की एजुकेशन, यूट्यूब स्टेशंस वगैरह हैं, एजुकेशन सिस्टम में किस बदलाव की जरूरत है? मैम, जहाँ तक आपने कोचिंग का नाम लिया, मैं ये भी बताता हूँ, ये भी एक तरह का सरकार का फेल्योर था कि कोचिंग्स को आगे आना पड़ा, उनको वो स्किल देने के लिए कि एग्जाम निकाल पाएं। फेयर मौका ही नहीं है। अगर वो बच्चे जो गांव से आते हैं, उनके स्कूल्स में पढ़ाई नहीं हुई, उन्होंने कॉलेज में नहीं पढ़ा है, उनकी मैथ्स बिल्कुल अच्छी नहीं है, उनको हम पढ़ा के उस लायक बनाते हैं कि वो कहीं ना कहीं उस एग्जाम को, कहते हैं ना, जो इक्वालिटी वो उनको कम से कम मिले। तो यूट्यूब के थ्रू हम लोग बहुत सारी फ्री क्लासेस भी देते हैं कि वो लोग अगर जिनके पास पैसे नहीं है वो भी वहाँ पर पढ़ पाएँ। कमिंग टू द सोल्यूशन पार्ट, इसमें था जो मुझे लगता है वो ये है कि सबसे पहले सरकार को ये एटीट्यूड छोड़ना पड़ेगा कि ऑल इज वेल। यहाँ कोई सामने आके कभी ये नहीं मानता है कि कुछ गलत चल रहा है, ये सबसे बड़ी समस्या है। अगर SSC कुछ गलत करती है, रेलवे 18 महीने ये नहीं बताती है कि एग्जाम का डेट कब होगा, जिनके एग्जाम हो चुके हैं उनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है, ज्वाइनिंग लेटर 1-1 साल 2-2 साल लटका रहता है। तो ये ऑल इज वेल वाला एटीट्यूड छोड़कर हम ये नहीं कह रहे हैं कि एक दिन में सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन ये मानना कि प्रॉब्लम्स हैं, मिलके उसको सॉल्व किया जाए। हम लोग कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देने को तैयार हैं। जैसा अनुपम ने बोला कि वो ऑलरेडी कुछ दे चुके हैं, सरकारों को लिख चुके हैं, बट कुछ भी इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है। सामने आने की जरूरत है। देश का युवा इतना मूर्ख नहीं है कि वो कह रहा है एक दिन में सब बदल दो। हम लोग तैयार हैं वेट करने को भी, बट एक प्रोसेस चाहिए, एक कमिटमेंट चाहिए कि हम इसको करना चाहते हैं, इसको हम चेंज करेंगे। ओके, स्टे ऑन विद अस एंड अब शो खत्म करने का टाइम आ रहा है। अभिनय के पास मैं एक फाइनल कमेंट के लिए जाऊंगी, बट बिफोर दैट, नेहा सिंह राठौर, शी हैज मेड अ मार्क फॉर herself as a Bhojpuri singer songwriter who has been writing songs on crucial issues. Her song on unemployment crisis, on this examination recruitment crisis, has been garnering a lot of eyeballs on social media. Let's listen into this and then I'll take a final comment from Abhinay before I end the show.
देशवा में बढ़ल बेरोजगारी ये दादा बूझेला नाही लाचारी सत्ता के लोगवाया नाड़ी ये दादा बूझेला नाही लाचारी युवन के टेंशन में निंदिया उड़ल बा ओ चैना उड़ल बा गड्डी पे सुते व्यापारी ये दादा बूझेला नाही लाचारी गड्डी पे सुते व्यापारी ये दादा बूझेला नाही लाचारी डॉक्टर इंजीनियर ना महटर ना एक्टर पुलिस दरोगा के हूँ ना कलेक्टर नवहन के बनई है पुजारी ये दादा बूझेला नाही लाचारी देशवा में बढ़ल बेरोजगारी ये दादा बूझेला नाही लाचारी लड़का लोगन के तैयारी करत करत कंपटीशन के साल 2 साल 3 साल बीत जाला कैसे 1 साल बीतल दूसर साल बीतल 3 साल बीतल चौथका में घूसल 5वां साल बाप देवे गारी ये दादा बूझेला नाही लाचारी सत्ता के लोगवाया नारी ये दादा बहुत साल बीतल नेहा सिंह राठौड़ अपने गीत में she has been saying that. Abhinay, a final word from you today because you have been responsible for this trend. What is it that you see now? आगे क्या लगता है अभी ये प्रोटेस्ट आप लोगों का जारी रहेगा? समाधान क्या है? ब्रीफ कमेंट्स अभिनय। बिल्कुल, आगे मैं 2-3 चीजों पे जल्दी बोलूंगा। जैसे आपने कोचिंग कहा तो वो भी एक बेरोजगारी का नतीजा है। दूसरा, शिक्षा को सुधारने की जरूरत है। तो जो युवा पढ़ लिख के बड़ा हो गया उसके लिए पहले रोजगार की जरूरत है। अब हम पीछे नहीं जा सकते 20 साल के, अब हम उस शिक्षा व्यवस्था को सुधार दें। ये वो युवा नौकरी मांग रहा है जो 2000 तक पैदा हुआ है, ना इसका पॉपुलेशन की वजह से इसके रोजगार छीना गया है, और ये 2010 या 12 तक ग्रेजुएट हुआ है, तो उसको बदला नहीं जा सकता पीछे से। अब क्या सोल्यूशन निकाला जा सकता है, इस पे बात होनी चाहिए। इस पे सरकार को कहना चाहिए कि वो किस तरीके से इसको ठीक करेंगे और आगे की क्या प्लानिंग होगी कि आगे के एग्जाम्स में, मतलब कि एक प्रोग्रेसिव रिपोर्ट दिखनी चाहिए कि हाँ सरकार इस पे कुछ सोच रही है। पहले वो ये माने कि प्रॉब्लम है, फिर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किस तरीके से वो आगे बढ़ रहे हैं ये दिखना चाहिए। तो अभी हमारा यही है कि हम सरकार से अभी भी यही विनती करेंगे कि सरकार इस पे बात करे। Yes, Abhinay, that's an important point, that you cannot live in denial of this crisis. The Auschwitz syndrome is not going to help, and clearly the government needs to take up, sit notice of these storms by these millions of voices that are wanting the government to pay heed to this job crisis today, be it in the government sector or private sector. And surely for a government that can react to 1 or 2 tweets by international celebrities, it can find time to come and address such genuine concerns and suno the students ki dil ki baat as well. For now, it's a thank you from the entire team of People's Editor. This was our attempt to flag all related concerns on a crucial issue that you'll find missing from most of mainstream media today. Thank you for tuning in, and thank you to all my guests. That's all that we have time for. Take care and stay well. देशवा में बढ़ल बेरोजगारी ये दादा बूझेला नाही लाचारी।